such appointment. He says, no, they want to. When I saw through the window, there were women waving, etc. I went. And they literally hugged me and what not. So they said, we have been invited for a state level conference in Shimla. And it's all that you have done. I said, no, I haven't done anything. So then they said, they had shared that they had some issues, they don't have resources, they don't even have a place to meet, so that they could be a group and talk about their problems and find a solution. So maybe the first lady deputy commissioner in Himachal, she was the registrar. I might have just exchanged a few words with her. And they got the registration, they got all those resources, and they were there. And so they were leaders of their village, and they changed their destiny. To me, they are the biggest leaders. So this is the story. Now, if you say when empowered women, how? Women empower women. But it's not about women alone. I would say there could be men also with a different issue. So one thing I must qualify, that women empowerment is not at the cost of taking it away from men. It is, both have to be equally empowered. In fact, in Kalyani, for mother child, which got WHO, etc., the focus was always on men. Because if men understand, if they are the other wheel, then only change will happen. I wouldn't have been here if my husband was not supportive. So women, to be empowered, you have to have humility. You have to accept there are many people who have made it happen for me. My grandfather first, they gave us the confidence. Fortunately, in our time, I come from a small village also, you can say a hamlet, but we could get because we got the confidence there. We were given the confidence and freedom to choose. So instead of just saying, no, I'm not writing IAS exam or I'm not going for PhD as told by my head of department, he was like, what are you doing? I came to All India Radio, but they gave me the freedom to choose. And once you have that confidence, then you are committed, you are dedicated, you are hardworking, then you prove. कहने से नहीं होता कि हम powered हैं. Then you prove to your colleagues, to your juniors, to your seniors. I did not face discrimination as a girl at home, but I did face challenges in the office, not because I was a girl, lady, I was, as I said, 21, but maybe because of my age. I did. एक बार तो एक मेरी कंपेयर थी लेडी, शी सेड आपकी मैडम क्या उम्र है, उतनी तो मेरी नौकरी हो गई है. So there were many challenges. So सवाल ये है कि if you empower, think that you are together. You are not at the cost of your brother. You are not at the cost of your husband. So let's treat. So my request to men, they are the primary audience. The fathers and men, the boys, they are the first who have to make this happen. That you are equal. Nobody is less, nobody is more. Yes, men अपनी जगह हैं, उनका Y क्रोमोसोम उनको बिल्कुल अलग बनाता है, और महिलाओं का X क्रोमोसोम उनको अलग बनाता है. तो एक दूसरे की वो पूरक हैं, लेकिन एक दूसरे की जगह नहीं ले सकते. That's all I have to say. Thank you so much, ma'am. Very rightly said actually by you कि कहने से empowerment नहीं होती है, empowerment true sense में करनी पड़ती है. And all of us have to stand for that. And a small change and a small initiative by her has actually developed in them, I believe. So a big congratulations to you for that. So my next question, since we are talking about entrepreneurship, my next question is related with the field of social entrepreneurship. What do you think are the challenges that women social entrepreneurs face when they are dealing with marginalized communities? Hi, good afternoon everyone. First of all, I am very thankful for the committee and for the PI also to bring me here at a dais with the honorable, very senior professionals to be here.
So for the social entrepreneur, women as a social entrepreneurs are today in at this time they are the architects of future, although we can say, because once when in a family also, when the woman opts for a entrepreneurship and in women entrepreneurship and in a job, so it's every time it's been that family also wants that you should be taking the part in the job, you should be the part of the job profile, not as a entrepreneurship, because you'll be facing the challenges, because everyone knows that their child will be facing challenge. So it's in the reality also it is, because when I was there in a job for the more than 9 years, I was like thinking that in a job we have to go for the 9 to 5 job and we have to listen our seniors and why to follow their rules, why not to opt for our own work and follow that, and we can do whatever we want and we can excel in our area. But once I entered into that, once I left my job, I realized that it's tougher. It's quite tougher. It's not that easy, because as per my family also, they were also, why have you like made a decision like this? It's very like very practical, I'm like telling. So I was like, okay, it's okay, I'll just try if I can do, because I had that passion. I was like very strongly, I felt in last 4-5 years during my job that I should be doing my something on my own. So I opted for that. And in a social sector, it's like people are like, why you are into it, and it's not your part of job. You can join any good organization at a higher position, why you are here? And you will be, and I have faced many like challenges, like people are like not interested in giving, not in supporting and giving work also, they would not support you. Okay, but one thing I had in my mind, that as I have decided I have to follow this, and I will take the all the challenges and I'll do it. This was the thing, I kept it in my mind. Once I started, after 1 year, I was like, why I am doing this? I should like leave it, or what? Have I taken the wrong decision or what? So, but after that, the passion in you should be very stronger to do the any business or any kind of thing, whether it's on the individual level or organizational level. So in a social sector right now, like it's like that, it's a very male dominated thing. It's a very male dominated. When you go into the rural areas, it's very challenging, and while traveling also it is challenging. But when you are communicating also, and in the जब आप गाँव में जाते हैं, तो जब आप बात करेंगे, तो अगर कोई मेल आएगा ना समझाने के लिए, तो वो उनका ज्यादा सुनते हैं. इट्स वेरी प्रैक्टिकल. हम अभी बुक्स में, टीवी में पॉडकास्ट देखते हैं ना, दैट इज वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ल्ड. एंड जब हम ओरिजिनली जाते हैं वहाँ पे, लाइक आई वर्क इन अ ट्राइबल कम्युनिटी फॉर 2-3 years, झारखंड और उड़ीसा के बॉर्डर पे एक गांव है चाकुलिया. देयर आई डिड वन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट विद द ट्राइबल कम्युनिटीज. वहाँ पे क्या रहता है, वहाँ पे देवर लाइक कि नहीं, मेल लोग है ना, तो वो उनको ज्यादा पता है, मैडम आपको नहीं पता है. वो बोलते हैं ऐसा नहीं है कि सो फेस, आपको भी लगता है कि ऐसा क्यों है, अब वुमेन्स ही बोलती है. ऐसा नहीं है कि मैडम आपको क्या पता, साहब बोल रहे तो वो सही बोल रहे, और आप तो छोटे हो बहुत. एक तो ये बहुत सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता नहीं क्यों है कि एज का आई डोंट अंडरस्टैंड. When I joined earlier, I started with the teaching line. So वहाँ पे भी क्या था, जितने भी teachers थे, they were all married. I was the first one जो unmarried थी. I joined there in a office although, but they were like कि पता नहीं sister ने why they have taken this unmarried girl. She doesn't have any experience and all. इतनी छोटी है, तो सबका यही रहता था कि अगर छोटे हैं तो इट्स लाइक काइंड ऑफ कि नहीं, इनको नहीं है एक्सपीरियंस. बट ऐसा नहीं है, तो बुरा भी लगता है, बट इट्स लाइक कि जब हम सोच लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा. मैंने यही वहां से सीखा. वहां मैंने 3 years to 4 years मैंने जॉब किया. द टीचर्स हु वर सीनियर्स टू मी, very elder to me, like 50 years plus age,
they were only like वही मुझे मेरी तारीफ करते थे that Hina you are very nicely doing, you are teaching children very nicely. So it's in entrepreneur sector, it's like कि you should have the passion and you have to face the challenges and overcome it. So that is the only way you can do it for men only also and for women also. Thank you so much, Hina. I think very clearly said कि वो men and women का differentiation upbringing के साथ इतना ingrained है. Systems का role बहुत ज़्यादा prominently निकल के आ गया that how the systems which are existing, like the legal systems or media system and all these things, how do they play a very major role in supporting this? So with this, we have an eminent personality over here. She's from the same background. And since you have experience in journalism and also a background in law, I would like to know from you, ma'am, that how the legal frameworks are supporting and creating an ecosystem which are helping women social leaders to come out and stand for themselves. Thank you so much मिथिला, मुझे मौका देने के लिए। और इसके पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं उपाय के लिए, जब आपने बताया उपाय एनजीओ के बारे में, संस्था के बारे में, मुझे तुरंत निदा फाजली का एक शेर याद आया कि घर से मस्जिद है दूर बहुत, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। वरुण ठीक वैसा ही काम कर रहे हैं, आसपास के बच्चों को मौका देना और उन्हें इस तरीके से मेन स्ट्रीम में लाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। और शायद ऐसे ही किसी बड़ी कोशिश की जरूरत हम महिलाओं को भी है, ताकि हम मेन स्ट्रीम में आए भी और बने रहें। और जहां तक बात आपने लीगल फ्रेमवर्क की कही है मिथिला, मैं ये समझती हूँ और शायद मुझसे सभी लोग इत्तेफाक रखेंगे कि किसी भी देश की उन्नति इसी में है कि वहाँ न्याय व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था बहुत मजबूत रहे। भारत में हम लोग एक बहुत हद तक कहा जा सकता है कि हमारा जो देश है विरोधाभासों का देश है, बहुत ज्यादा कंट्राडिक्शन हम एक साथ देखते हैं। खासकर मैं जहां से आती हूँ, मैं बिहार के एक छोटे से गांव से आती हूँ और मैं उषा मैम से बहुत छोटी हूँ, उसके बावजूद मैं आपको बताऊं, ये कहते हुए कोई खुशी की बात नहीं है कि मैं पूरे गांव में मैं अकेली पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मेरे पढ़ने लिखने के लगभग 10 सालों तक यही हालत रही। वहां पर बच्चों के लिए स्कूल नहीं थे, लड़कियों के लिए तो खास कर नहीं था, और वो दूर स्कूल होने की वजह से बहुत डर भी था कि माँ बाप पढ़ने भेजते भी नहीं थे, क्योंकि सिक्योरिटी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी उस तरीके से। तो उस वजह से बहुत लड़कियां जो प्राइमरी स्कूल शायद 6ठी 7वीं तक पढ़ी, उनकी बस वो इंतजार करती थी कि कब वो 14-15 साल की हो जाए और उनकी शादी हो जाए और उस घर से चली जाए, और यही उनका भविष्य आमतौर पर माना जाता था। तो वहां तो कल्पना ही नहीं की जा सकती है कि आप जॉब में आए, आप एंटरप्रेन्योर बने, आपको नौकरी भी मिलेगी, इसकी कल्पना से ऊपर की बात थी। वहां से दिल्ली तक का मेरा सफर रहा और इत्तेफाक से मीडिया, उस वक्त प्राइवेट मीडिया आ रही थी जब हम लोगों ने ज्वाइन किया न्यूज चैनल्स को, तो तभी मीडिया आ रही थी। मुझे याद है, मैं अगर लोग बोध ना हो रहे हो तो छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से शायद बच्चे इससे ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। आप सभी लोग जिस तरह से पढ़ रहे हैं और जॉब ढूंढने जाएंगे या आपके यहाँ कैंपस के लिए लोग आएंगे, मैं आईएमसी संस्था में थी और मैं वहां से पहली बार मैंने कुछ लिखा था और मैं उसको देने के लिए एक संस्थान है, बहुत मशहूर अखबार की संस्था थी, वहां मैं गई अपना आर्टिकल देने के लिए। तब जाना पड़ता था क्योंकि मैं दिल्ली में थी। मैं ऐसा ही एक न्यूज रूम सा था, आप समझिए, और जब मैंने एंटर किया वहां से, और समझिए ये 20 कदम मुझे आना था, और उसमें मैं 20-21 साल की लड़की और मैं अपना देने जा रही हूँ आर्टिकल। कोई भी वहां महिला नहीं थी, सारी नजरें घूम गई कि ये कौन सी लड़की आ रही है, कौन सी महिला आ रही है। आप ये रेशियो रहा करता था, और जाहिर सी बात है कि चूंकि ये रेशियो है तो आपकी आवाज बहुत दबी हुई रहेगी। और वहां से ये सब सारी कहानियां शुरू हुई और तमाम न्यूज चैनल्स में लड़कियां आने लगी, अखबार में भी आने लगी, लेकिन वो शोषित ज्यादा थी। मैं एक बहुत मशहूर संस्थान में काम करती रही, लगभग
एक साल मेरी हालत ये थी कि मुझे एक डिपार्टमेंट दिया गया जहां मैं रिपोर्टिंग करती थी और एक दूसरा डिपार्टमेंट था जहां मैं न्यूज एंकरिंग करती थी। मुझे वैसे तो छुट्टी 2 दिन की मिलनी चाहिए थी, लेकिन मुझे एक डिपार्टमेंट जैसे मान लीजिए कि सैटरडे को उसने छुट्टी दी और दूसरे डिपार्टमेंट ने उस दिन मेरी ड्यूटी लगा दी। अब मैं मूर्खों की तरह ये करती जा रही थी क्योंकि कोई आवाज उठाने की कोई जगह नहीं थी, कोई फोरम नहीं था। बहरहाल 2-3 महीने में बहुत थक गई तो मैं गई मांगने अपने सीनियर से कि मुझे छुट्टी चाहिए। उन्होंने बोला कि नहीं, आपकी तो छुट्टी हर हफ्ते हम दे रहे हैं। वो हर हफ्ते मुझे एक छुट्टी दे रहे थे, एक डिपार्टमेंट, और उसी दिन दूसरा डिपार्टमेंट से मैंने पूछा कि मुझे छुट्टी चाहिए। उसने कहा कि आपकी छुट्टी तो हम हर हफ्ते दे रहे हैं, क्योंकि उस दिन मेरी रिपोर्टिंग होती थी और जिस दिन छुट्टी थी उस दिन मेरी एंकरिंग होती थी। तो कहने का मतलब मेरा शोषण होता रहा और मैं आवाज नहीं उठा सकती थी तब। और बाद में धीरे धीरे, ये मेरी ही कहानी नहीं है, आमतौर पर सबकी कहानी थी। जब हम लोग एज अ महिला रिपोर्टर कहीं बाहर जाते थे, हमारे लिए कोई सुविधा नहीं होती थी उस जमाने में। आजकल आप देखिए मोबाइल से आप शूट कर रहे हैं, उस जमाने में बड़े बड़े कैमरा होते थे और बड़े बड़े ट्राइपॉड्स होते थे, बहुत भारी, और वो हमको उठाना पड़ता था क्योंकि अगर हमने नहीं उठाया तो हमारे साथ वो ढंग के जो कैमरा पर्सन शूट नहीं करेंगे। उसी तरह से हमारी स्टोरीज ड्रॉप कर दी जाएंगी। जो पैसे मिलते थे वो कम मिलते थे, जाहिर सी बात है कि मेल है उसको ज्यादा मिलता था। और तो और जब आपका इंटरव्यू होता था तो ये पूछ लिया जाता था कि आप जल्दी शादी तो नहीं करने वाली हो, क्योंकि उनको ये डर था कि आपने शादी कर ली तो आपको हम काम सिखाएंगे और आप चली जाएंगी, या फिर प्रेगनेंसी आपकी हो गई तो आप कैसे काम करोगे। तो इन तमाम चीजों के बीच में बहुत शुक्र है हमारे लीगल सिस्टम का कि हमारी व्यवस्था जगी। विशाखा जैसी कमेटी की बात आई, विशाखा कमेटी बनी। विशाखा कमेटी बनने से कम हमारे पास हर एक संस्था में एक फोरम हुआ कि अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो आप वहां जा सकती हैं। अब तो विशाखा कमेटी को इनफैक्ट जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसमें भी डाला गया है कि वहां पर भी बच्चे जा सकते हैं, लड़कियां जा सकती हैं। तो ये कहानी केवल ऐसा नहीं कि जहां वर्किंग है आप पढ़ते हैं वहां पे भी बहुत कुछ डिस्क्रिमिनेशन होता है। धीरे धीरे जागरूकता ऐसी बढ़ी जब टेलीविजन और तमाम मीडिया का बूम आया और साथ मिलके हम काम करते रहे। पीआईएल जब से हक बन गया तब से, और आरटीआई जब से हक बन गया तब से ये चीजें जरूर हुई कि हमने न केवल आवाजें जगह जगह अलग अलग फोरम पे उठाई जहां पर इक्वल पे की बात हुई। आज बहुत हद तक माहौल बदला हुआ है और हम आप देख सकती हैं, जैसे मेरा न्यूज चैनल है, जब मैंने अपना न्यूज चैनल शुरू किया तो चूंकि मैं, जिसको बोला जाए दूध की जली हुई थी, तो इसलिए मैंने ये तय किया कि मेरे यहाँ लगभग 90% महिलाएं काम करेंगी। और तो वो शुरुआत तो वहां से हुई और आज भी महिलाएं काम कर रही हैं। लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि महिला और पुरुष की क्या बात है। जो ताकतवर है, जो टैलेंटेड है, जो योग्य है, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तब शायद हम असली विमेन एम्पावरमेंट, या मैं इसको विमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं कहूंगी, सोशल एम्पावरमेंट कर पाएंगे। हमें विमेन एम्पावरमेंट से ज्यादा सोशल एम्पावरमेंट की जरूरत है। तो वो वहां से एक कहानी शुरू हुई है और अभी चल रही है। लेकिन सुधार ऐसा नहीं है, खासकर लीगल फ्रेमवर्क में मैं कहूं, क्योंकि अभी भी निर्भया कांड हमने बहुत लंबा वक्त नहीं है जब हमारे आंखों कानों के सामने से गुजरा है और आज भी चीजें हो रही हैं। तो मैं संतुष्ट तो नहीं हूं, लेकिन उपाय जैसी कोशिशें हम लोगों को नई राह पर जरूर ले जाएंगी। एक छोटे से गांव से यहाँ तक पहुंचना, ये एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है हम सबके लिए कि अगर खुद के लिए कुछ करना चाहे और खुद के लिए स्टैंड लेना चाहे तो कहीं से भी निकल के कहीं भी पहुंचा जा सकता है। सो अ ह्यूज अपलॉड टू यू फॉर दैट। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, लीगल फ्रेमवर्क्स की हमने बात की। आपके अकॉर्डिंग व्हाट डू यू थिंक कि जो ऑर्गेनाइजेशनल या फिर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें, हाउ आर दीज हेल्पिंग क्रिएटिंग मोर एवेन्यूज एंड पाथवेज for women to become, have access to leadership opportunities and roles for themselves? देखिए, पहले गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट में तो मैं नहीं कहती कि कभी भी काफ़ी नहीं होता, अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। लेकिन if you look at the government initiatives, right from 1961, when there were two major legislations about, one was dowry, the other was women's rights in politics.
लेकिन आज कितना है, अब हमें 30% रिजर्वेशन की बात करनी पड़ी। सो मतलब इतने सालों में 60 साल हो गए, 60 कितने 64 साल हो गए, तो अब अगर इतने समय में हम उतनी महिलाओं को पार्लियामेंट में या विधानसभाओं में नहीं भेज सकते, सो कहीं कमी तो हम में है ना। But it's not just about India. Globally, if you see the women politicians, they say about 82% of women politicians have complained about threats of death, rape, and other things. And we know that in India how the elections are contested, and the kind of situations, the kind of whatever environment we create during elections. So I salute women who reach the parliament despite all these challenges. Yes. And but the beginning was made from panchayat, sarpanches. That's beautiful. So shuruat hui. Then we have other legislations. And second comes the structures. You talked about the organization. I have worked in the government, so I know the structures are very much in place. It's for you to take the leadership. It's for you to take the leadership. I have a very long story and varied examples because I come from a village where English was taught from class 6, A, B, C. Okay. And then it's a long journey in the career, outside the career. I reached the White House and the Foreign Office of US. So at the invitation of the president, what I mean to say is, दुष्यंत का एक दोहा एक है, 2 लाइनें मेरी फेवरेट है वो। कौन कहता है सुरख आसमान में हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। So this is for the young people to take up this. Now, I give you one question. 1961 Dowry Act. 2025, have we got rid of dowry? No, it's a menace. So, that's what I want to say. Government कर लेगी ठीक है, but it's for the people. You know, once I was doing a series on adolescence. That was my turning point, other than the managerial roles and administrative roles, why I got committed. Before that, I used to write poetry, I used to publish, etc., and I stopped it. I said, जिंदगी को छूना है तो मुझे ये करना है. I interviewed hundreds of youth in Delhi. कहाँ जाके फिर उनकी शिकायतें उनके घर वालों से, मतलब किशोरावस्था आने पर क्या होता है। इतनी शानदार वो मेरी जिंदगी का वो एक बहुत चैलेंजिंग, मैं 6 महीना सोई नहीं थी, पर बहुत सुंदर। तो उसमें मैंने ये देखा कि कैसे समस्याएं घर से शुरू होती हैं। उसमें एक एपिसोड था अनवेड मदर्स पे, and then interviews from AIMS professors and counselors. I was told that the majority of girls are abused at home. जो ये सब होता है, मी टू, हम ऑफिस की बात कर रहे हैं, घर में देखिए ना, आपके चचेरे भाई, कभी सगे भाई, कभी मामा, कभी चाचा, उनके सामने आपकी बेटियां सुरक्षित हैं क्या? कितनी शर्म की बात है ना। हम कहते हैं हमारा सुसभ्य सुसंस्कृत समाज है, क्या ये हमारी संस्कृति है? सो अगर आपकी बेटी आपके घर में सुरक्षित नहीं है तो बाहर की क्या बात कर रहे हैं? निर्भया तो उसका एक परिणति है, उसका एक उदाहरण है। घर में कितनी निर्भया हैं, and these are real life stories I am talking about that I had canned. So सामाजिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, उसका एक दूसरा उदाहरण बता दो। आफ्टर माई रिटायरमेंट वी वॉन्टेड टू बाय अ कार। सो हमने कहा चलो भैया फाइनेंस, थोड़ी बहुत फाइनेंस सीख ली मैंने रिटायरमेंट के बाद। मुझे लगा हम ही ने ठेका ले रखा है क्या टैक्स देने का। तो एनीवे मैंने कहा EMI ले लेते हैं। तो बड़ा उसने यस सर यस मैम कर करके, गुड़गांव का बड़ा स्मार्ट, आप लोगों की तरह स्मार्ट एक बंदा मार्केटिंग कर रहा। एंड उन्होंने कहा कि हमने EMI लेंगे तो ये करें। तो कहते yes sir, I'll come home tomorrow to get your papers. I said not sir, but madam, I am the pension holder, not sir.
सो जो आप कह रही हैं ना माइंडसेट, ये अर्बन मेट्रो का दिल्ली एनसीआर का माइंडसेट है. एनी नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स टुडे आई विल टेल यू, एनी नंबर ऑफ एग्जाम्पल. सो ये हमारा माइंडसेट है. सो जब तक माइंडसेट नहीं बदलेगा, नथिंग कैन चेंज. बिलीव यू मी, गवर्नमेंट जो मर्जी कर ले, कुछ नहीं. अगला एक सवाल और है, उसके आगे एक दृश्य आपको और पेश करूंगी तब तक. क्योंकि लड़कियां भी बहुत जागरूक हैं एंड मैं ये समझती हूँ कि जब से आफ्टर 2000 जेनजी जो नई जनरेशन आ गई है, they are more kind of they feel that they are equal and they are actually. क्योंकि अब हम लोग की पीढ़ी है वो पेरेंट्स बन चुके हैं, जहाँ घर में हमने बच्चों को अपने इक्वल ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, और ये चीज़ें धीरे धीरे गांव तक भी गई हैं. जैसे वसीम मैम ने कहा, इन लोग की तमाम कोशिशें रही हैं. बहुत सारे सरकारी जो अलग अलग पोजीशंस पे जो महिलाएं आई हैं, उन लोगों ने भी ये सब चीज़ें देखी हैं. तो वो सब कुछ धीरे धीरे सोसाइटल चेंज हुआ है, इसमें कोई शक नहीं. लेकिन फिर भी जिसको कहा जाए कि इतनी भी तस्वीर नहीं बदल गई है जिसपे हम बहुत गर्व कर सकें और हमें बड़ा अच्छा लगे. अभी भी अगर मीडिया की हम बात करें, तो अगर कोई बहुत इम्पोर्टेंट रिपोर्टिंग करनी होती है, खासकर बड़ी पॉलिटिकल कोई इवेंट है, तो आप रेयरली ही देखेंगे कि कोई किसी महिला को इसका जिम्मा दिया जाता है. अगर दिया भी जाएगा तो उसके साथ साथ एक उसका मेल एडिटर भी बैठा होगा, और महिलाएं यही पूछ रही होंगी कि साहब आप ये बताएं कि आपके अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, क्योंकि उनके पास सीरियस क्वेश्चनिंग का एक ताकत ही जैसे छीन ली गई है. उनकी क्वेश्चनिंग जो होगी वो यही होगा कि आप बड़ी अच्छी लगती हैं, आप क्या खाते हैं, आप कैसे इतने अगर किसी महिला से मंत्री से कर रही हैं, तो चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर ही उनके सामने बैठी हो, तो वो उसके साथ ये पूछेगी कि मैम आप थक तो नहीं गई इतना सारा बजट पेश करने में. तो ये सवालात जो हैं, जो जिस तरह के दिए जाते हैं, या जो एक माइंडसेट बना दिया गया है कि आज भी महिला है तो उसे अगर एंकर उसको बनना है तो उसको खूबसूरत होना होगा, उसको मेकअप करना होगा, उसके कानों में झुमके होने चाहिए, काइंड ऑफ कि उसको दिखना है. ब्रेन विथ ब्यूटी की जो बात हम कहते हैं, हम भूल जाते हैं कि उसको ब्रेन हमें देखना है, उसकी ब्यूटी पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं. आज भी ये माइंडसेट है. लेकिन जाहिर सी बात है कि जैसे अब हम लोग इस फील्ड में आए, और मेरे जैसे तमाम और लोग भी हैं जिन्होंने ये धीरे धीरे कोशिश की है बदलने को, और अभी भी चल रहा है. फिर भी आप न्यूज चैनल के ओनर्स में अगर आप देखेंगी तो शायद मैं और मेरे बाद एक अनुराधा जी हैं, अनुराधा प्रसाद, दो ही लोग हैं जो न्यूज चैनल की ओनर्स हैं. हालांकि अनुराधा की भी कंपनी है और राजीव शुक्ला देखते हैं, तो वो वहां पे आप समझ सकते हैं ये कितना डिस्क्रिमिनेशन है. बहरहाल फिर भी मैं ये मानती हूँ कि इसमें काफी चेंज हुआ है, और मीडिया धीरे धीरे जो पहले लड़कियां आती थी तो आते ही इनको एंटरटेनमेंट बीट दी जाती थी, वो एंटरटेनमेंट बीट करेंगी या फिर फूड और इस तरह की चीजें करेंगी. अब वो चीजें बदली हैं. लेकिन ये जो शुरुआत है, मैं यहाँ पे एक मेंशन जरूर करना चाहूंगी. हाल फिलहाल में एक घटना घटी, एक किट संस्था है, आप सभी बच्चों को पता होगा कि उड़ीसा में एक यूनिवर्सिटी है और वहां पर एक संस्था है, और वहां पे एक नेपाली लड़की ने सुसाइड कर लिया. और फिर एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें उस लड़की का जो दोस्त था उसको अब्यूज कर रहा था, और वो उसको गालियां दे रहा था. किसी दोनों के बीच की फाइट हो रही है और वो गालियां दे रहा है. बात नेपाली लड़की की नहीं है, वो एक औरत की बात मैं ले रही हूँ. और ये जो सच्चाई है ये हमारे तमाम इंस्टीट्यूशन में है. मैं बस ये जरूर कहना चाहती हूँ कि आज जैसे कई बार मैं मजे में चूंकि रिपोर्टर रह चुकी हूँ तो आदत है, मैं गाड़ी छोड़कर मैं जानबूझ के मेट्रो से आती हूँ, और जहाँ पे लड़के बच्चे यंग जनरेशन आते हैं, मैं जानबूझ के उनके साथ एनोनिमिटी में आती हूँ. और मैंने देखा है कि बच्चों के बात करने का जो तरीका है, जो खासकर आजकल के यंग बच्चों का, वो लड़की से बात करें वो गाली दे के बात करेंगे, और लड़की भी गाली दे के बात कर रही है. पर मैं आपको यहाँ पे ये इस बात की ताकीद करना चाहती हूँ, द डे आपने, खासकर लड़कियों को, द डे आपने अपने आप को गाली दिलवाने की आदत डाल दी, आप ये मान के चलें कि उसके बाद आपके सम्मान की रक्षा स्वयं ब्रह्मा भी नहीं कर सकेंगे. द डे आपने कह दिया कि वो आपको क्योंकि गाली आपको बहुत कूल लग रहा होगा आज की तारीख में,
वहीं से आपको वो मान के चलता है मेल मानसिकता, या शायद आप ही अगर किसी को गाली दें आप उसका सम्मान नहीं कर सकती हैं। गाली देने के बाद सम्मान नहीं आ सकता। पर ये आजकल कूल चलता है, आजकल बच्चे ऐसे बात करते हैं, वो कहते हैं आज की लैंग्वेज है। पर अगर है तो मुझे लगता है ये गलत बात है, तो गलत बात को बदलने में कोई बुराई नहीं है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मैं तो मजाज के शब्दों में यही कहूंगी कि ये बहुत हद तक महिलाओं के ही हाथ की बात है कि वो कितना सब चीजों को बदल सकती हैं। आज भी ये सच था, कल भी ये सच था और आज भी ये सच है। जो मजाज ने आज से लगभग 60 साल पहले कहा था कि तेरे माथे पे आंचल बहुत खूब है, लेकिन तो इसे एक परचम बना लेती तो अच्छा था। जरूरी है कि आप अपने इज्जत की लड़ाई खुद लड़े, अपने हक की लड़ाई खुद लड़े, जो आप करना चाहती हैं वो करने की लड़ाई खुद लड़े, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हैं। हम सभी ने अपनी अपनी कोशिश की है, पर इसके पीछे यही सच है, चाहे मैं बैठी हूँ या मैम बैठी हैं, हिना बोल रही थी, लड़ाई तो हम भी अपनी अपनी खुद ही लड़ रही हैं। इसकी आपकी लड़ाई मैं नहीं लड़ सकती। बस उठो, लड़ो, तस्वीर हमारी बदली है, तुम्हारी भी बदलेगी। अपने लिए लड़ते रहना जब तक सही चीज सामने ना आ जाए। और यहाँ पे मैम ने बात की थी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की भी, लाइक जर्नलिज्म में भी ये हमने सुना आपसे कि बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन होता है कि फीमेल आर नॉट गिवन दैट रोल। तो विद दिस आई कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू मैम, दैट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं या अनकॉन्शियस बायसनेस की जब हम बात करते हैं, दिस इज़ वेरी प्रेवलेंट। और हमारी ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे हम प्राइवेट बात करें या गवर्नमेंट बात करें, तो ये काफ़ी ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। बट हाउ कैन पब्लिक पॉलिसी किस तरीके से इंटरवीन कर रहा है टू ओवरकम दिस एस्पेक्ट ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या फिर अनकॉन्शियस बायसनेस, सो दैट इट कैन क्रिएट मोर एवेन्यूज फॉर वुमेन टू बिकम सोशल लीडर्स या फिर इस नेटवर्क से बाहर निकल के आगे? देखिए, जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है, आई डोंट थिंक देयर एनी डिस्क्रिमिनेशन दैट एग्जिस्ट, बी इट इन आवर प्रमोशंस, बी इट इन आवर सिलेक्शंस। आई हैव नेवर फेस्ड, तो मैं एक छोटे से गांव से सरकारी स्कूल से पढ़ के आई और कॉलेज भी वो, और मैं यूपीएससी आई, मुझे तो कभी नहीं लगा, उसके बाद आज तक नहीं मुझे लगा कि देयर इज एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। व्हेन आई वाज अ यंग प्रोग्राम ऑफिसर इन शिमला, which department didn't I look after? In winters, because mostly people used to go away on leave, right? So every officer had to double or triple. So 3-4 portfolio bhi hote the. So I was sometimes in charge of transport also. Once their director said, "Are you sure you'll be able to?" I said, "Why not?" So I looked after transport department also. Mrs. Gandhi जब अपनी हत्या से 2 महीने पहले हिमाचल आई थी, तो शायद पहली प्रधानमंत्री थी जो इतने ट्राइबल एरियाज में गई, एंड आउट ऑफ हर 8 positions, I was given 3, including in tribal areas of Kinnaur and among the troops. So when my director said, "No, वहाँ तो you only will go," I said, "क्यों, किसी और को भेज दो." I don't say male. I said, नहीं, और कोई प्रॉब्लम तो he scratched further. I said, आजकल मेरी मेड नहीं, I had 2 small children. I said, मेरी एक ही कंडीशन है कि कल को आपको ये शिकायत ना मिले कि मेरे बच्चे मेरी गाड़ी में ट्रेवल करें, क्योंकि वहां जाएंगे तो कुल्लू में मेरी नानी रहती थी, मैं कुल्लू से बहुत आगे मुझे जाना था, टू गो टू केलोंग, टू बी विद हर। और मैंने कहा तो उनको मैं कुल्लू में छोड़ूंगी अपनी नानी के घर में, तो आपको वापस आके, क्योंकि वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, दैट you are always being monitored. Men always monitor you, especially your colleagues. And if you are good, if you are liked by your seniors, because you are good, you are performing, you are delivering. So he says, "No problem." I said, "Now you know, don't say it tomorrow." So I took them and dropped at my nanny's house, and I went and covered Mrs. Gandhi. We were the only 2 women. Anyway, long story. So कोई ऐसी चीज नहीं है जो उन्होंने करनी है। कार सफारीज होती थी, जयंत शाह आते थे अफ्रीका से, तो ऐसे अब मैं स्पोर्ट्स नहीं देख रही हूँ, मुझे क्यों दे रहे हो कि नहीं, जाएगी तो आप ही जाएंगी और कोई नहीं जाएगा। So I used to go. What I mean to say, no, I am not the only one. Many people are there. आप किसी को ये मौका मत दीजिए that I cannot do it or I am less. The moment you do, you have accepted your defeat. The moment you say, "Yes, I can do it."
Always say that to yourself. You will never get defeated. Now, public policy ka main aap, because you people are from economics, this thing background, I'll pose a situation to you that marries public policy, private partnership, and the ground reality. मेरे घर की बगल में एक घर डिमोलिश हुआ है, वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है. So every time I cross कार से तो मैं उनको देखती हूँ. एक बच्ची अपने भाई को गोदी में उठा के सारा दिन घूमती है. और tell me, government has said लेबर में औरत है. She comes 10 times outside, therefore she must be missing her work. तो ठेकेदार क्या उसको वो पैसे देगा जो एक मेल को देगा? नहीं देगा. Is he wrong? He's not wrong, right? Now she has to feed the child also. What about the burden on the woman? What if the contractor gives the money to her husband? What if he's drinking at night and she is working, cooking for them? This is a real life situation. I'm not talking like a feminist. I love men. What they can do, only they can do. What we can do, only we can do. Right? So, अब उसका तीसरा situation लीजिए उस बच्ची का. How will she ever study? She is a mother at the age of 7. And she is not the only bachchi of India. So what about the enrollment in schools? What about the dropouts? So see, analyze this situation of your country as somebody who are going to be managers, who are going to be in economics. See, there are economic angle, public policy है, exist करती है. तो उस situation को public policy कैसे है? उसमें सारे stakeholder हैं. And any situation you take, there are stakeholders. Finally, about government, there are ICC, आपके यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी है, grievance होती है लड़कियों की, ये वो सब है. लेकिन let me tell you, in government, it's not easy. It's not easy. उसकी annual confidential report में आता है, expunge नहीं होता ऐसा कोई भी case, promotions रुक जाती हैं, because आपकी ACR मंगाई जाती हैं. So it's not easy, तो लोग डर के मारे भी नहीं करते. But at the same time, I'll blame girls also. क्योंकि उनको थोड़ी सी रियायतें चाहिए. If you want some concessions, people will take advantage of you. Don't expose yourself that you are less. Don't expose yourself कि मेरे घर में ये situation है, घर को घर में छोड़िए, ऑफिस को ऑफिस में रखिए. That is when what women can do the best. हमारा एक ना switch off switch on mode होता था. The moment we enter home, switch off. माइंड स्विच ऑफ. फोन तो नहीं, सीनियर पोजीशन के बाद मंत्री का फोन आएगा तो लेंगे ना, अगर हेड ऑफ डिपार्टमेंट का फोन आएगा तो लेंगे, पर मेंटली स्टूडेंट. सेकंड इज, इफ यू आर एन अचीवर, डोंट टॉम इट. जो पुरुष कर सकता है ना, आप नहीं कर सकती, एक्सेप्ट इट. आई विल नेवर grudge because my husband has supported me. I went for 3-4 months in Commonwealth Fellowship. I went for a year to USA, and I have, whenever I travel abroad, he has never ever questioned कि तुम्हारे साथ और कौन जा रहा है. वो क्या, एक मैरिज में म्यूचुअल फेथ है, फेथ नहीं है तो शादी क्या है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ किसी भी रिलेशनशिप का. सो वो समझिए. और एक जो इन्होंने बहुत अच्छी बात की, गाली की, आई विल टेल यू, हमारी भी बहुत लड़ाइयाँ हुई होंगी. कोई शादी नहीं है जिसमें लड़ाई नहीं होती. अगर कोई बोलता है तो वो झूठ बोले. लेकिन एक लक्ष्मण रेखा रखिए. ना मैंने कभी उनके पेरेंट्स तक बात पहुंचाई, ना उन्होंने कभी मेरे पेरेंट्स को बीच में लाया हमारी लड़ाई के बीच में. सो अपनी एक लक्ष्मण रेखा रखिए, अपनी डिग्निटी की रेखा रखिए, पुरुषों को भी औरत को भी. द मोमेंट यू डू दैट, लाइफ इज ब्यूटिफुल. यू कैन अचीव एनीथिंग, बट यू हैव टू सी आपकी डिग्निटी कहाँ क्वेश्चन हो रही है. द मोमेंट, आई नो मेनी वुमेन यूज्ड टू कम, मैडम मेरे आज ये है, मैं नहीं आ सकती. मैंने कहा भैया मेरे भी तो बच्चे तकलीफ में हैं, मैं बोलूँ सर मैं नहीं आ सकती? नहीं, अभी आएगा पार्लियामेंट क्वेश्चन जवाब देना है ना, तो प्लीज आ जाओ. नहीं, वो नहीं आएंगी. So people take their jobs lightly. The moment you start taking your job lightly, either you don't take the job. But if you want to be working women, please know
you have to work doubly hard. I always tell my juniors, women go. To share an example of some innovative example where women have actually set an example by creating something in the social field. Yeah. More and how I know, there are some organizations, as RO is there, in which Neelam Gupta ma'am is there. She is running it very well from last like 20 to 30 years. She is doing it very well. And one more ma'am I know, Tripti Singhal. She is like have a very great platform for the women entrepreneurs. That platform name is Women Entrepreneur. She does like 100 women's program also once in a year, and she has created a global platform also, especially for women's, like for the marketing, for if one want to pitch and learn the entrepreneurships. She has created a very well platform, and meanwhile I'm also trying to do something. Like it's a long way, so thank you. Thank you so much. Thank you so much. And the last one from you, that for like when we talk about social media or the women who are in media, so how does the portrayal of women in social media has some kind of expectations of gender roles in the society? आपका ये जो सवाल है उसके जवाब देने के पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि कभी आप घर जाएं, आप सभी लोग अपने घर लौटते हैं और आपके घर में आपको माँ न दिखे, माँ दिखे ही नहीं, मिले ही नहीं, जिसकी भी माएँ हैं या बहन है वो मिले ही नहीं, केवल पापा से ही मिलना हो, पापा से ही खाना दें, पापा ही बात करें, उसी तरह से तो क्या हाल होगा? आपको अच्छा लगेगा या आपको बुरा लगेगा? चाहे वो जाहिर सी बात है कि बुरा लगेगा। वैसे ही खासकर लड़कों से और लड़कियों से तो मैं बाद में पूछूंगी, अगर आप अपने इंस्टीट्यूशन में इस GL बजाज में पढ़े, एक भी लड़की न पढ़े, एक भी खूबसूरत चेहरा न दिखे, आप क्या करेंगे? इस इंस्टीट्यूशन में ही रहेंगे या किसी ऐसे कैंपस को चुनना चाहेंगे जहां मल्टी चीजें दिख रही हो, अच्छी खूबसूरत लड़कियां भी दिख रही हैं? जाहिर सी बात है कि आप ऐसे ही किसी कोई इंस्टीट्यूशन चुनेंगे। ठीक वैसे ही ये कहने का मेरा मतलब ये है कि औरतों के बिना दुनिया अधूरी है। रौनकें जितनी भी हैं, ये हमारे सोसाइटी का जो कहा जाता है कि शहर का शाद होना नाशाद होना, रौनकें जितनी भी हैं औरतों से हैं। शाद मतलब खुशी और नाशाद मतलब गम। तो कोई भी शहर, कोई भी जगह तभी खुशनुमा दिखती है जब वहां पे महिलाएं भी होती हैं। और यही समझिए, यही तस्वीर हर जगह है। मीडिया है, सोशल मीडिया, आप रील्स देखते हैं, केवल रील्स में कई बॉय ही आने लगे, क्या ही रील देखेंगे यार, है ना? जरूरी है थोड़ी सी अच्छी चेहरे भी आए, कोई लड़की हंस रही हो, कोई गा रही हो। केवल किशोर कुमार नहीं सुना जा सकता, लता की जरूरत है, केवल अरिजीत नहीं सुना जा सकता, है ना? ठीक वैसे ही चाहे हम लोग मीडिया की बात करें, चाहे हम बिजनेस की बात करें, चाहे हम किसी भी सेक्टर की बात करें, हम तो इस बात की भी उम्मीद अब कर रहे हैं कि हमारे पास राष्ट्रपति अब महिला है, हमारी प्रधानमंत्री महिला रह चुकी हैं, मैम ने इंदिरा जी के साथ काम किया है, और आने वाले समय में भी हमें हर एक जगह पर महिलाएं भी दिखें और पुरुष भी दिखें। हम जो भी कर रहे हैं हम बराबरी पे करें। जैसे मैंने बताया, लड़कों से पूछा, वैसी लड़कियों की भी हालत यही होती है कि केवल लड़के कोई नहीं दिखे, हम इतने सस्ते धसते हैं, हम सभी यंग रहे हैं। मतलब जैसे हमारी शादी हो गई है तो हमारा हस्बैंड हमें कॉम्प्लीमेंट न करे, मैम के हस्बैंड ने कॉम्प्लीमेंट नहीं किया, कितनी बार इनकी लड़ाई हुई है उनके साथ। आई कैन इमेजिन सेटिंग ऑन द सेम बोट। सो ठीक वैसे ही आप लड़कियां हो, आप लोग स्मार्टली जब बन के आते हो, अगर आपके क्लास मेट्स या फ्रेंड, आई एम नॉट सेइंग कि अदरवाइज ही, अगर बॉयफ्रेंड है तो वो भी अगर देखे नहीं, तो पूरी लड़ाई ही इस बात पे है कि तुमने मुझे नहीं देखा, उसे देखा। तो ठीक वैसे ही जैसे हम लड़कों के लिए लड़कियों का रहना जरूरी है, ये बेसिक फंडा है, वैसे ही लड़कों के लिए लड़कियों के लिए लड़कों का रहना जरूरी है। हम अगर इस आज तक हमने विमेन एम्पावरमेंट को ना एक ऐसे दौड़ में बांट दिया कि इसको पीछे करो, मुझे आगे होना है,
अब ये बदलने की जरूरत है। 2025 से हम एक नई सदी में आ गए हैं और एक नए डिकेड में आ गए हैं, और इस डिकेड में मेरे ख्याल से मिथिला का नाम जो है वो हमारे बिहार में मिथिला है, और वहां से माँ सीता है, और हम लोग को सीता का उदाहरण दिया जाता है कि माँ सीता की तरह बनना चाहिए। पर मैं ये मानती हूँ आमतौर पर माँ सीता को आजकल के जो बच्चे हैं वो समझते हैं बड़ी ओल्ड फैशन टाइप। मैं लेट मी क्लियर, शी वॉज मोस्ट मॉडर्न लेडी, क्योंकि आप सोचिए कि वो एक औरत थी उस जमाने में, हम लोग तक के जमाने में हमें नहीं पता था कि हमारे माँ बाप का कमरा एक ही होता है, या मेरी मैंने जब भी आंखें खोली माँ मेरे साथ सोते मिलती थी। आई डिडंट नो कि मम्मा पापा के साथ भी रहती होगी, लेकिन उस जमाने में तो और होता होगा कि हस्बैंड को लोग नहीं देखते होंगे। वो लेडी निकलती है जंगल जंगल, अपने हस्बैंड के साथ रहती है वो। उसके बाद हस्बैंड ने जरा सा अपमान कर दिया, उसको वापस जंगल भेजा, उसने इनकार कर दिया कि मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ, और वो बाकी कहानी अलग है। कहने का मतलब ये कि बहुत इंपावर्ड वुमेन रही हैं, और वो सभी लोगों ने समझा है पुरुषों की जरूरत को भी। आज की तारीख की सारी महिलाएं, हम सभी लोग इस बात पे शुक्रगुजार हैं कि हमारे पार्टनर्स, हमारे घर वाले, हमारे पेरेंट्स सभी ने सपोर्ट किया तो हम यहाँ पहुंचे हैं। आप सभी लोग भी यही समझती होंगी, खासकर महिलाएं तो जानती हैं कि पापा ने सपोर्ट किया है, भाई ने सपोर्ट किया, लड़ाई की है, लेकिन जब भी आपको जरूरत पड़ेगी तो भाई आके खड़ा हो जाता है कि नहीं नहीं करने दो पापा, करने दो पापा। ठीक वैसे ही बहनें करती हैं आप लोगों के लिए, दोस्त करते हैं। आज भी कई लोगों के दोस्त होंगे जो आपको सपोर्ट करते होंगे, आपके हर तरीके से आपके साथ खड़े रहते होंगे। तो कुल मिला के हमें ये बैकएंड में तो पता हो गया है, हम कभी अलग समझते नहीं एक दूसरे को। यही चीज अब सोसाइटी में दिखाने की जरूरत है, और ये जिम्मेदारी भैया मैं बहुत क्लियर बता दूं कि हम लोग तो अपनी लड़ाई लड़ चुके, पहुंच चुके हैं, बड़े आराम से हैं, थोड़ा बहुत अब सोसाइटी के लिए भी करते चल रहे हैं। अब तो जिम्मेदारी आपकी है, दिखाना आपको है। इस बार डायस से आप हमें सुन रहे हैं, अगली बार इस डायस से आपकी कहानियां सुनने को मिले, और वो भी बराबरी की कहानियां सुनने को मिले। और सच पूछे तो इस बात पे हम बहस न कर रहे हो कि वुमेन एम्पावरमेंट जरूरी है, तब ज्यादा अच्छा माहौल मैं समझूंगी, तब हमारा सक्सेस है। तब उपाय की जो सारी कवायद है, जो सारी मेहनत है, जो वरुण कर रहे हैं कि लोगों को निकाल कर और मेन स्ट्रीम में लाया जाए, बच्चों को लाया जाए। वरुण जब भी ये काम करते हैं वो ये नहीं देखते कि मैं केवल लड़के की मदद करूंगा, लड़की की नहीं करूंगा, या केवल लड़की की मदद करूंगा, लड़के की नहीं करूंगा। ये अब आप जो फाउंडेशन से उनकी भी सोच अब बदली है, अर्लियर ऐसा नहीं था। अब वो जब चूंकि ये सब चीजें बदल रही हैं तो ये तस्वीर अब बदली बदली से दिखेगी। इस वजह से यहाँ पे आप 50-50 बैठे हैं, आप लड़कियां बैठी हैं, लड़के भी बैठे हैं, बात महिलाओं की हो रही है, चाव से लड़के सुन रहे हैं, तो इससे अच्छा क्या सीन हो सकता है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को।